Hello everyone, welcome you all in lecture 34 on differentiation. Okay, we are dealing with the exercise 1.4. In that our third example totally based on the show that. Okay, so a first problem in that, what is if x equal to small a into square root of sec theta minus tan theta and y equal to their a into square root of sec theta plus tan theta. Okay, you have to show that dy by dx equal to minus y by x. आपको क्या शो करना है यहाँ पे dy by dx की वैल्यू minus y by x. Okay, so please see how you deal with such type of example. Okay, so सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो, बाद में देखते हैं क्या एडजस्ट करना है था. तो यहाँ पे देखो x और y किस में डिफाइंड है, थीटा में. तो आपका फार्मूला क्या होगा यहाँ पे एक्चुअली dy by dx इक्वल टू dy by d theta divided by what, dx by d theta. Okay, so here dy by d theta means a as it is square root of sec theta plus tan theta. इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी 1/2 square root of sec theta plus tan theta. Firstly 1/2 square root of sec theta plus tan theta. Okay, into the derivative of यहाँ पे आएगी sec theta plus tan theta. तो sec theta की sec theta into tan theta plus tan theta की आएगी यहाँ पे sec square theta. tan theta की क्या आएगी sec square theta. Okay, and same in the denominator. Okay, because only the changes of sign there, that is minus. Okay, so same data is there, that is a into 1/2 root sec theta minus tan theta is there into the derivative of sec theta once again here sec theta into tan theta minus tan theta has the derivative sec square theta. Okay, so you will common out here simply. Okay, so cancel this, cancellation is there, a get cancelled, this 2 to get cancelled here. Okay, please note down this thing, a sec theta is common from both and in bracket you have remaining factor that is sec theta plus tan theta. Okay, so square root में sec theta plus tan theta है और वहां पे आपने जो कॉमन निकाला वहां पे भी sec theta plus tan theta है. so square root और वो कैंसिल होके ऊपर एक square root बचेगा. तो क्या होगा यहाँ पे sec थीटा गेट कॉमन आउट. ओके, सो स्क्वायर रूट में क्या बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा. डन, क्योंकि आप किसी भी चीज को दो बार स्क्वायर रूट में लिख सकते हो. ओके, नीचे भी देखो sec थीटा इज कॉमन एंड इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस sec थीटा इज देयर, बट यू हैव द रिमेनिंग फैक्टर इन दैट व्हाट sec थीटा माइनस tan थीटा. आपको क्या चाहिए sec थीटा माइनस tan थीटा चाहिए, तो यहां से कॉमन निकालना पड़ेगा आपको माइनस sec थीटा. माइनस sec थीटा कॉमन लोगे तभी आपका ब्रैकेट में आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा. तो स्क्वायर रूट और वो गेट कैंसिल. ओके, सो आपका एक स्क्वायर रूट बचेगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा. So here sec theta get cancelled now and here minus is there and square root of sec theta plus tan theta. Okay, this is a, so you will adjust here a and a. अगर आपने यहाँ पे a एडजस्ट किया तो कुछ फर्क गिरने वाला है क्या, नहीं. अब देखो a into square root of sec theta plus tan theta that is y is there divided by a into square root of sec theta minus tan theta that is x is there. According to proof you can adjust that thing. Okay, so such type of example you have dealing with in this lecture. What is that, show that problem. Please check once again the solution. Okay, so let's move to example number second. In that if x equal to what, e power sin 3t and y equal to what, e power cos 3t is there. dy by dx आपको शो करना है माइनस y log x अपॉन x log y. ओके, तो यहाँ पे भी सेम है आपका. सबसे पहले आप dy by dx निकालोगे. सो dy by dx का फार्मूला क्या होगा यहाँ पे dy by dt डिवाइडेड बाय व्हाट, dx by dt. ये फार्मूला होगा यहाँ पे. सो dy by dt क्या आएगा देन e पावर x जैसा दिख रहा है आपको ये. तो सबसे पहले e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x into the derivative of cos 3t. cos 3t क्या आएगी
minus sin 3t into the derivative of once again 3t is what 3 is there divided by okay dx by dt देखो so dx by dt क्या आएगा e power sin 3t so e power sin 3t रहेगा ये sin 3t की रहेगी cos 3t और 3t की फिर से रहेगी 3 3 गेट कैंसिल ओके तो प्लीज चेक द आंसर्स नाउ आपको शो क्या करना है यहाँ पे माइनस y log x ओके तो यहाँ पे देखो ये माइनस sin 3 थीटा ओके सो e पावर cos 3 थीटा को आप लिख सकते हैं y ओके तो माइनस y और ये क्या बचा आपका sin 3t बचा डिवाइडेड बाय e पावर sin 3t को आप लिख सकते हैं x into what cos 3t is there this is equation number 1 now अब आप चेक करोगे आपका आंसर थोड़ा सा मिल गया थोड़ा सा बाकी है अब क्या बाकी है sin 3t को आपको लिखना है log x में तो देखो ये आपके पास है क्या आपके पास गिवन है x इक्वल टू e पावर sin 3t आपके पास गिवन है बराबर है तो अगर मुझे sin 3t चाहिए तो आपको ये अच्छे से पता है कि अगर log में कोई चीज है तो उसकी इधर की साइड e के पावर में ट्रांसफर होती है तो अगर आपके पास e के पावर में है तो इधर की साइड किस में ट्रांसफर होगी log में तो यहाँ पे मिलेगा log x इक्वल टू sin 3t ओके तो sin 3t की जगह आप लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाय x इनटू सो cos 3t की जगह आप लिख सकते हैं log y so okay done your proof here minus log y log x divided by sorry it's a minus y log x divided by what x log y okay okay let's check the solution of example number 3 what is given to you x equal to t plus 1 upon t minus 1 y equal to t minus 1 upon t plus 1 okay show that y square plus dy by dx equal to what 0 okay तो ये dy by dx क्या होगा यहाँ पे dy by dt divided by dx by dt ओके क्या होगा यहाँ पे y dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं ओके सो dy by dt क्या होगा सबसे पहले तो यहाँ पे देखो क्वोशंट रूल लगेगा सो t plus 1 जैसे का वैसा डेरिवेटिव ऑफ t minus 1 that is only 1 minus t minus 1 okay into the derivative of t plus 1 is what 1 divided by t plus 1 whole square okay divided by now dx by dt same t minus 1 derivative of t plus 1 1 minus t plus 1 derivative of t minus 1 that is once again 1 divided by t minus 1 whole square okay so here t minus t get cancelled so now remaining is what 1 into 1 1 minus into minus plus so 1 plus 1 there 2 divided by t plus 1 whole square और यहाँ पे अब क्या बचेगा here once again t minus t get cancelled this is minus 1 and this minus 1 once again so minus 2 divided by t minus 1 whole square t minus 1 whole square okay so this 2 get cancelled and here minus is there so t plus 1 divided by t minus 1 whole square and here t plus 1 okay sorry it's a t minus 1 get upward side so t minus 1 upon t plus 1 is there and what is t minus 1 upon t plus 1 that is y so it becomes minus y square minus y square so minus y square get transferred to this side you will get your proof okay so now here x equal to सेकंड स्टेप से छुड़ा के देखते हैं और में देखते ट्राई करते हैं आता है कि नहीं तो अब यहाँ पे x और y क्या गिवन है आपको दे रखा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे तो x इक्वल टू 1 बाय y x इक्वल टू 1 बाय y और सिंपली y इक्वल टू 1 बाय x बट आपको y स्क्वायर चाहिए ओके सो इसलिए मैंने क्या लिखा x इक्वल टू 1 बाय y लिखा सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हियर differentiate with respect to x here okay x has the derivative 1 upon y की डेरिवेटिव सबसे पहले 1 upon x जैसा दिख रहा है -1 upon y square
into the derivative of y is what dy by dx. This y square equal to minus dy by dx. Okay, so this y square plus dy by dx equal to what? 0. Also you can try this method. This is an alternative method for that and a simple method. Okay, they are the reciprocal of each other. Okay, differentiate with respect to a. You will get your proper answer in 2 or 3 steps. Okay. Okay, so let's move to example number 4. क्या given है देखो, x equal to a cos cube t, y equal to a sin cube t, dy by dx आपको शो करना है minus y by x to the power 1 by 3. Okay, so यहाँ पे सबसे पहले तो आप dy by dx लिखोगे, so dy by dx क्या आएगा आपका dy by dt divided by dx by dt. Okay, so dy by dt अगर आप निकालोगे, a तो जैसे का वैसा रहेगा. Okay, into sin cube t की डेरिवेटिव 3 sin square t into the derivative of sin t is what cos t is there. Sin t की cos t. Okay, and once again here a is there. Okay, cos cube t की डेरिवेटिव 3 cos square t and cos t has the derivative minus sin t. Okay, so here cos t get cancelled, sin t get cancelled. Okay, so now 3. Okay, once again here 3 also get cancelled. 3 भी cancel होगा वहां पे. So क्या बचेगा देखो अभी आपका a sin t divided by a cos t. ये आपका फैक्टर बचेगा और यहाँ पे एक माइनस है तो ये माइनस भी बचेगा आपका. ओके, तो अब चेक करो आपका आंसर क्या है. y अपॉन x होना चाहिए और टू द पावर 1/3 होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे y अपॉन x मतलब आप सबसे पहले ऊपर y जनरेट कर सकते हैं क्या, वो देखना पड़ेगा आपको. ओके, सो कैन यू जनरेट हियर y? कैन यू जनरेट हियर y? प्लीज चेक इट. बिकॉज आपके पास मिला है माइनस a sin t, माइनस a sin t. सो निगेटिव को छोड़ दो यहाँ पे. सो दिस माइनस ओके a sin t को क्या लिख सकते हो आप? sin cube t to the power 1/3. sin cube t to the power 1/3 and here okay a cos cube t to the power 1/3. cos cube t to the power 1/3. Okay, so you can write here simply minus. Okay, so can I write here a cube? Can I write here a cube? Okay, so you can write here a cube sin cube t to the power 1/3, or simply you can write here a to the power 1/3 divided by a to the power 1/3. Okay, so cos cube t to the power 1/3. Why I can write this term firstly? Because in place of y there is a sin cube t. a sin cube t आपको चाहिए, तो यहाँ पे a को शिफ्ट करना पड़ेगा. तो sin cube t का पावर 1/3 है, उसके अंदर मुझे a चाहिए, तो इसका भी पावर 1/3 होना. तो आप लिख सकते हो क्योंकि a कैंसिल हो रहा है, a पावर 1/3 a पावर 1/3 भी कैंसिल होगा. बराबर है. तो यहाँ पे क्या होगा देन माइनस a sin cube t to the power 1/3 divided by a cos cube t to the power 1/3. So now your answer will be ready here. a sin cube t को आप लिख सकते हैं y और a cos cube t को आप लिख सकते हैं x. So minus y by x to the power 1/3. Same power is there. Okay, तो इस तरह से कभी-कभी आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के वहां पे छुड़ाना पड़ता है. Okay. Then here x equal to 2 cos power 4 t plus 3 sin power 4 t plus 3 और आपको शो करना है minus root 3y divided by 2x. Okay, so यहाँ पे dy by dx आएगा. फार्मूला क्या होगा? dy by dt divided by dx by dt. Okay, तो dy by dt सबसे पहले यहाँ पे 3 जैसे का वैसा sin पावर 4 की डेरिवेटिव आएगी 4 sin cube t plus 3 और यहाँ पे आएगी sin t plus 3 की डेरिवेटिव cos t plus 3. ओके, डिवाइडेड बाय 2 जैसे का वैसा यहाँ पे cos पावर 4 ये आएगी
4 cos क्यूब t प्लस 3 और cos t प्लस 3 की माइनस ऑफ sin t प्लस 3. Okay, so please cancel out this term. 4 get cancelled. Here sin get cancelled. Here cos get cancelled. So your answer will be minus 3 by 2. Minus 3 by 2 जो आपका प्रूफ में हो. Okay, that will be there. Okay, so now minus 3 by 2 is there, and once again what is remaining factor here? Sin square t plus 3, and a remaining factor in there, cos square t plus 3. cos square t plus 3. ओके, तो यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे तो अपना आंसर ये आएगा. अब देखो यहाँ पे पावर 4 है, अगर पावर 4 रहेगा तभी आप उसको y लिख सकते हैं, और यहाँ पे पावर 4 रहेगा तो भी आप उसे x लिख सकते हो. ओके, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 3 by 2 sin पावर 4 t plus 3 का पावर 1 by 2. 1 by 2. ओके, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? cos power 4 t plus 3 to the power once again here 1 by 2. once again here 1 by 2. ओके, अब देखो क्या एडजस्ट करना है आपको. आपको क्या चाहिए था? यहाँ पे 3 sin power 4 t plus 3 चाहिए, तो यहाँ पे इस 3 को अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा. तो ये होगा आपका 3 to the power 1 by 2, बट आपका तो 3 है यहाँ पे. 3 to the power 1 by 2 अंदर गया, तो आपका बाहर क्या बचेगा? √3 बाहर बचेगा, क्योंकि एक पावर आप अपने अंदर दिया ना, बराबर है. सेम यहाँ पे cos पावर 4 के साथ क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो 2 को अंदर डालना पड़ेगा. तो 2 का पावर हाफ गया, तो 2 का पावर वंस अगेन हाफ बचेगा, तो ये √2 होगा. और यहाँ पे मिलेगा आपको y डिवाइडेड बाय x. क्या मिलेगा आपको? सॉरी, इट्स द स्क्वायर रूट ऑफ y. एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय x, बिकॉज़ पावर हाफ में है वो टर्म. पावर किस में है? वो हाफ में है. तो इस तरह से आपका आंसर होगा. इस रूट को कंबाइन करो, माइनस √3y डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2x. फिर चेक वंस अगेन क्या किया. देखो यहाँ पे मुझे sin पावर 4 चाहिए था, तो मैंने sin पावर 4 का पावर हाफ लिया, तो ये मुझे स्क्वायर मिलेगा. अब उसके साथ sin पावर 4 के साथ मुझे 3 चाहिए, बट इसका फॉर्म पावर 1 by 2 है. ये अंदर जाने के बाद इसका भी पावर 1 by 2 होगा, बट यहाँ पे तो 3 है. पावर 1 by 2 अंदर गया, तो बाहर क्या रहेगा आपका? फिर से पावर 1 by 2 रहेगा, मतलब स्क्वायर रूट इनटू स्क्वायर रूट, दैट विल बी 3. यहाँ पे भी सेम वैसा ही किया, तो ये मिलेगा आपको माइनस √3 डिवाइड बाय √2. तो यहाँ पे ये जो टर्म जनरेट होगी दैट विल यूर y हियर, बट y टू द पावर हाफ है, तो ये होगा √y डिवाइड बाय √x. रूट को अंदर रूट का मल्टीप्लाई कर लो, वो आपको प्रॉपर आंसर वहां पे मिल जाएगा. ओके, ओके, सो प्लीज चेक द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 6. क्या दिया है देखो एक बार फिर से. x इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर एंड y इक्वल टू व्हाट? t माइनस tan इनवर्स t. आपको ये वाला शो दैट करना है. ओके, सबसे पहले काम कर लेते, जल्दी से जल्दी dy बाय dx निकाल लेते हैं. फार्मूला वही है आपका dy बाय dt डिवाइडेड बाय व्हाट? dx बाय dt. ओके, तो dy बाय dt क्या होगा? यहाँ पे t की डेरिवेटिव आएगी 1 माइनस tan इनवर्स t की 1/1 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx बाय dt की देखो यहाँ पे 1/1 प्लस t स्क्वायर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ किसकी निकलेगी? 1 प्लस t स्क्वायर की, वो आएगी 2t. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो क्या मिलेगा? 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1, तो सिर्फ t स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर. ओके, और इसके नीचे क्या आएगा? सिंपली 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर इज देयर. 1 प्लस t स्क्वायर इज देयर. ओके, so here 1 plus t square 1 plus t square get cancelled, so your answer is this tt once again get cancelled, so your answer is t by 2 is there. Your answer is what? t by 2 is there. Okay, so now but our answer is in terms of, okay, our answer is in terms of what? e power x. okay, divide by 2 मिला है, मतलब उस t की जगह आपको ये चीज लाना है. तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे भी क्या क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप उस t को क्या लिख सकते हैं? देखो y प्लस tan इनवर्स t. ओके, तो dy by dx इक्वल टू y प्लस tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा. डन. y प्लस tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय 2, वो जैसे का वैसा है. अब आपको चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ e पावर x माइनस 1.
अब e पावर x चाहिए। ओके, यहाँ पे देखते हैं e पावर x को आप क्या लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर है। ओके, सो x इक्वल टू log of 1 plus t square is there, तो e पावर x क्या होगा यहाँ पे 1 plus t square होगा। e पावर x क्या होगा 1 plus t square। ओके, सो यहाँ पे एक काम कर देते, t को जैसे का वैसा ही लिख देते, क्योंकि t में ही आपका आंसर रहने वाला है, t में ही रहेगा ना वो आंसर। ओके, सो नाउ आपको e पावर x में आंसर लाना है, तो सबसे पहले तो आपको e पावर x लाना पड़ेगा। तो x किस में है, इसमें आपको ये अच्छे से पता है, log अगर कैंसिल होता है तो वो साइड की चीज e के पावर में ट्रांसफर होती है, बराबर है। तो e पावर x इक्वल टू 1 प्लस t स्क्वायर, सो t स्क्वायर इक्वल टू e पावर x माइनस 1, so t इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ e पावर x माइनस 1। डन। सो यहाँ पे t की जगह पुट अप कर दो सीधा सीधा, स्क्वायर रूट ऑफ e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 2 आएगा। डन। ओके, ओके, सो लेट्स सी सेवंथ एग्जांपल। क्या दिया है देखो, x इक्वल टू sin इनवर्स e पावर t, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e पावर 2t, और आपको ये शो करना है। तो देखते हैं इस शो के लिए क्या जुगाड़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो dy बाय dt तो चाहिए आपको सबसे पहले, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे dy बाय dx निकाल लेते हैं। सो क्या फार्मूला आएगा आपका, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, क्योंकि शो दैट में आपका dy बाय dx होना जरूरी है। ओके, तो dy बाय dt क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये मिलेगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e पावर 2t, और यहाँ पे फिर से डेरिवेटिव किसकी आएगी, e पावर 2t की, और वो भी माइनस के साथ है, तो माइनस e पावर 2t into the derivative of 2t once again 2, okay, divided by dx by dt sin इनवर्स e पावर t। सो ये क्या आएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e पावर t का होल स्क्वायर, तो e पावर t का होल स्क्वायर मतलब e पावर 2t ही होगा, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ e पावर किसके आएगी, t की, e पावर t की, फिर से e पावर t होगी। यहाँ पे देखो ये 2 टू गेट कैंसल, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ गेट कैंसल, सो क्या बचेगा आपका यहाँ पे माइनस e पावर 2t डिवाइडेड बाय e पावर t। So this e power 2t divided by e power t means what? Minus e power t is only there. But our answer, okay, now our answer is dy by dx equal to what? Minus e power t. But dy by dx के साथ आपको sin x चाहिए, तो यहाँ पे सीधा सीधा देखो, x में चाहिए आपको, e power t को आप लिख सकते हैं sin x, e power t को क्या लिख सकते हैं, sin x, पुट अप कर दो। So dy by dx equal to minus sin x, okay, तो sin x plus dy by dx इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, 0। डन, इट्स योर फाइनल आंसर। ओके, ओके, सो इट्स योर लास्ट एग्जांपल इन दैट एग्जांपल नंबर 8, x इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर एंड y इक्वल टू व्हाट, a 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। यू हैव टू शो दैट dy बाय dx इक्वल टू माइनस b स्क्वायर y अपॉन a स्क्वायर x। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल लगेगा आपका, और यहाँ पे भी क्या लगेगा आपका, क्वोशिएंट रूल लगेगा। ट्राई करो ये आप खुद से। ओके, एंड आफ्टर दैट दिस एग्जांपल नंबर 4, दैट विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंशिएट अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इस टाइप के भी प्रॉब्लम हमने बहुत सारे देखे हैं। ओके, तो जैसे दो फंक्शन आपके हैं, एक फंक्शन है आपका फॉर एग्जांपल x पावर x विथ रिस्पेक्ट टू सपोज आपका है sin ऑफ tan x, इसे आपको दो फंक्शन गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसे आप u कंसीडर करते हो, और इसे आप क्या कंसीडर करते हो, v कंसीडर करते हो, बराबर है। तो आपको क्या लेना है, u की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लेना है, तो यहाँ पे क्या होगा, du by dv आएगा, अकॉर्डिंग टू पैरामेट्रिक फॉर्म du by dx अपॉन क्या होगा, ये dv by dx। फिर इन दोनों की डेरिवेटिव लेके यहाँ पे पुट अप करके आपको फाइनल आंसर लिखना होगा। ओके, सो सच टाइप के एग्जांपल आपको गिवन है, वो भी आप ट्राई करो। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर we will have to see our last content, that is higher order derivative. Okay, because after that एक और कंटेंट बाकी है, but that will be skipped out, वो skip हुआ है, that will be nth order derivative, so वो नहीं देखेंगे। इसके बाद का जो कुछ भी है, that is हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, वहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको निकालना है।
तो अब तक के जितने टाइप आपके रिपीट हुए हैं वो वहां पे पूरे रिपीट होंगे dy by dx के लिए, और उसे फिर से अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा d2y by dx square, that will your second derivative. तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आराम से देखेंगे. ओके, so if you like this lecture, please subscribe my channel, that is PK's Academy of Mathematics. Okay, so bye everyone, take care and have a great day to all of you.